commercial real estate and the A to Z of residential real estate, all of which reached number 1 on Amazon India. Amazon India पे number 1 पे पहुंचा है ये. हर एक किताब बहुत ही खास बात है. Recognized as one of India's foremost voices in real estate leadership and urban reform. He's also actively involved, ladies and gentlemen, in the PropTech startup ecosystem and serves as mentor at Earth Fund, backed by Brigade Group and Nikhil Kamat's Gruhas. Ladies and gentlemen, zor se bajaiye tali, ladies and gentlemen, for co-founder of BCD Royal, chairman of the CII Real Estate Committee and advisor to NAR India, Ashwinder R. Singh ji. Ashwinder ji के लिए please जोर से बजाइए ताली. स्वागत कीजिए उनका आपके इस खूबसूरत इंदौर के शहर में. Thank you so much. What a pleasure always to see you, Mr. Singh. Thank you. Good to see you as always. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इधर प्लीज बैठ जाइए. दिस इज द मॉडरेटर्स सीट. एंड मैं हमारे सब स्पीकर्स को रिक्वेस्ट करूंगा जैसे आप लोग एक एक करके आएंगे प्लीज ये फोटो ऑर्डर के हिसाब से ही बैठना. सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और का फोटो है सामने कोई और बैठा है. सो एस्थेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं हमारे पहले स्पीकर को बुलाना चाहूंगा. ही ब्रिंग्स अ स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज टू हाईटेक. He has a BTech in civil engineering from IIT Madras and an MBA from IIM Bangalore. Basically IIT IIM के नीचे कभी उन्होंने बात किया नहीं है. And as CFO he plays a key role in driving High-Tech's growth, ensuring financial discipline and shaping the company's expansion strategy. Ladies and gentlemen, the esteemed director and CFO High-Tech Projects Limited, Mr. Raj Shah. Thank you so much. एंड कोई भी अगर आपके फैमिली में IIT IIM एस्पिरेंट्स है उसके टिप्स के लिए भी आप इनके पास जा सकते हो, वो आपको जरूर गाइड करेंगे. बट गिव हिम अ बिगर राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. आप लोग और जोर से बजा सकते हो ताली इनके लिए. थैंक यू सो मच मिस्टर शाह. हमारे अगले जो स्पीकर है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाई इंदौर, ही एक्टिवली रिप्रेजेंट्स द रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट्स, वर्किंग क्लोजली विद गवर्नमेंट एजेंसीज, अर्बन प्लानर्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स टू प्रमोट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड प्लान्ड urban development. Ladies and gentlemen, he's also been associated with several initiatives aimed at strengthening the sector's contribution to Indore's growth, including discussions on transit-oriented development as well. Ladies and gentlemen, the president of Credai Indore, CEO Classic Group, Sandeep Srivastav ji, वो already आ चुके हैं यहाँ पे, उनके लिए जोर से ताली. हमारे अगले जो स्पीकर है, he is a seasoned entrepreneur, established his first company 2006 में. As a growth specialist with authority in the startup and IT industry, has helped hundreds of organizations set up their business operations, and he's also an investor in numerous startups and owner of various corporations. Ladies and gentlemen, by introducing the concept of providing turnkey solutions for office and co-working spaces, almost 2 decades ago, he demonstrated his vision to empower companies with convenience. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for the founder, Workey Office Spaces, founding member, YPO MP, President IMP, Sawan S. Ladha ji. हमारे अगले स्पीकर leads one of Indore's established real estate developers with over 25 years of experience in residential and township development. Under his leadership, the company has delivered and is developing a diverse portfolio of plotted developments, apartments, and integrated communities put together. As the secretary of Credai Indore, he plays an active role in strengthening the city's real estate ecosystem by promoting industry best practices. Sumit Mantri ji ke liye bajaye zor se taali please, the secretary of Credai Indore and managing director of Shubham Group. हमारे अगले स्पीकर है a prominent real estate entrepreneur and industry leader serving as the president of NAREDCO Madhya Pradesh. In this role, he represents the state's real estate sector's interests, working closely with the government bodies, policymakers, and industry stakeholders to promote sustainable urban development. Ladies and gentlemen, the president of NAREDCO Madhya Pradesh chapter, managing director, Vibrant Build More LLP, Vivek Damani ji. Thank you. My next speaker is a key member of the group's leadership team, is known for his strong emphasis on construction, excellence, engineering quality, and long-term value creation. He plays an instrumental role in overseeing project execution, ensuring that each and every development that he's a part of reflects the group's commitment to durability, innovation, and customer trust. With a forward-looking approach rooted in the group's legacy, he continues to drive sustainable growth while strengthening Hemchuk Group's position as one of Madhya Pradesh's most respected real estate brands. Ladies and gentlemen, the director of Hemchuk Group, Vivek Hemchuk ji. Thank you so much. बहुत shukriya for joining us over here. Thank you to all of you.
Ladies and gentlemen, इतने बेहतरीन लोग एक साथ एक छत के नीचे हमेशा देखने को नहीं मिलते. जोर से ताली बजाइए प्लीज इनके लिए. They deserve every bit of it. Knowledge का भंडार आने वाला है यहाँ पे. And Ashwinder ji, I pass it over to you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Session, but the session is after lunch, and I've been told, so we will have conversations in English, Hindi, whatever is convenient to everybody. I don't want people to get bored. It is a good full room. So thank you so much, and many congratulations to Reality Plus for coming to Indore. My relationship with Indore is not very old. The first time जब मैं इंदौर पहली बार आया, मैं NAR के बोर्ड पे एडवाइज़र हूँ उनका, and I generally conduct a lot of sessions, keynotes and training sessions for them. तो 2 साल पहले NAR का एक एनुअल जर्नल मीटिंग हुआ था जहाँ पर मैं आया था, और उसके बाद मैं अब चौथी बार आ रहा हूँ. So it is really wonderful, and it is so great to have all of you on this panel. 4-5 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं as the chairman of CII Real Estate, because we deal with most of the developers across the country. इंदौर का अपॉर्चुनिटी देखिए, आजकल हर जगह बोलते हैं कि टियर 2 में बहुत ग्रोथ है, बट मुझे ये लगता है बैनर्जी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट ऑल ऑफ यू एंटरप्रेन्योर्स हैव इन इंदौर इज कि हम द क्लीनेस्ट सिटी का एडवांटेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से ले सकते हैं. आई थिंक उसको हम मार्केट नहीं करते हैं एज डेवलपर्स. अगर मेरे को डेवलपर बनना होता इधर, या मैं एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च कर रहा होता, और एक तरीका, क्योंकि मेरे को बहुत सुनने में आ रहा है कि मार्केट स्लो है, एक्चुअली मार्केट चेंज हो रही है, और काफ़ी लोग हैं जो बाहर से इंदौर में रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, बिकॉज ना ही सिर्फ इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, इट इज़ ऑल्सो one of the relatively more affordable real estate markets. और अगर इसकी मार्केटिंग पैन इंडिया बहुत अच्छे तरीके से हो तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी सेल्स कैसे हो सकती हैं. यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो आए हुए हैं, जिन्होंने अभी, आई वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट गुड़गांव, एक ब्रांडेड रेजिडेंस लॉन्च हुआ था गुड़गांव में, टॉनिनो लंबोर्गिनी बाय सिग्नेचर ग्लोबल. और हु वाज द पर्सन हु डिड दैट इवेंट? उन्होंने उनके 2-3 इवेंट आउटसाइड ऑफ गुड़गांव किए, और टॉनिनो लंबोर्गिनी के जो क्लाइंट्स हैं 25% इंडिया से ही हैं, बट वो बाहर से आ रहे हैं. एंड यूज़र डिमांड बहुत अच्छी है इंदौर की, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ है, माइग्रेंट्स की मार्केट है, लोग घर लेना चाहते हैं. जितने लोग मध्य प्रदेश में हैं, मुझे लगता है जैसे पंजाब हरियाणा के जितने लोग हैं उनको होता है कि वो चंडीगढ़ के आसपास घर खरीदें, मुझे ये लगता है कि जितने लोग मध्य प्रदेश में हैं उनको होता है कि वो गुड़गांव, वो इंदौर के अंदर घर खरीदें. सो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, आप जैसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स हैं. सो वी विल कीप इट वेरी सिंपल. क्विकली व्हाट आई वांट इज, अगर आप 1 मिनट के अंदर, वी कैन स्टार्ट विद राज और फिर हम आगे चलेंगे, अगर आप ऑडियंस को ये बता सकें कि आप क्या करते हैं एंड व्हाट इज योर क्विक इंट्रोडक्शन, सो दैट थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाएगा ऑडियंस के लिए. Good afternoon. Thank you mainly to Realty Plus and everyone here for giving me a chance to speak with you guys. So I am from High Tech Projects
एंड हम लोग मेजरली कंस्ट्रक्शन करते ऑफ हाई एंड एंड हाई राइज कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन गुजरात. वी आर बेस्ड इन अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी and Baroda, and we are doing around 2 crore square feet of construction as on today. The reason for coming to Indore is I have been a part of the industry for the past 5-6 years only in Ahmedabad. लेकिन मैं जितना बार इधर आया हूँ और जितनी बार सुना है, तो लोग अहमदाबाद वाले लोग वही बोलते हैं कि इंदौर वहाँ है जो जहाँ अहमदाबाद 10 साल पहले था. लेकिन मुझे उससे अग्री नहीं करता हूँ. मैं इधर का जो इंफ्रा है, जो रोड्स है, मेट्रो चालू हो गया है, इधर का जो टाउनशिप डेवलपमेंट चालू हो गया है, वो शायद अहमदाबाद के लेवल पे आ गया है. शायद पॉपुलेशन में 10 साल पीछे होगा, लेकिन इंफ्रा में मुझे इधर के रोड्स, इधर की क्लीनलीनेस काफ़ी आगे लगती है. सो आई फोरसी कि इंदौर का जो मार्केट रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है वो अहमदाबाद से भी बेटर हो सकता है. एंड जिस तरह के हाई राइजेस वहाँ चालू हो गए अभी इतने लास्ट 5 years आफ्टर कोविड, वहाँ पे अभी 30 स्टोरी बहुत कॉमन हो गया है. 30 स्टोरी बिल्डिंग, 20 स्टोरी उससे 5 साल पहले हुआ था, एंड 14 स्टोरी उससे 5 साल पहले हुआ था. तो आई फोरसी कि इंदौर इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इन रियल एस्टेट. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू. Sandeep ji. I did my engineering from Indore, GSITS in 1983. पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद से लास्ट 38 ईयर से मैं इंदौर में कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ. 2010 से हम लोगों ने क्रेडाई फॉर इंदौर फॉर्मेशन का क्रेडाई में हम लोग काम कर रहे हैं. रियल एस्टेट में रो हाउसिंग, फ्लैट्स, अपार्टमेंट सभी लोग बना रहे हैं. हमारे जितने मेंबर हैं सब अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. क्रेडाई से हम लोग ये भी कर रहे हैं कि वी आर ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिल्डर्स एंड ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द परचेजर्स, बाय बिल्डर्स एंड परचेजर्स. तो हम ये सारी जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो बैनर्जी साहब बता रहे थे, वो सारी पॉलिसीज़ के लिए हमारे इनपुट देते रहते हैं. तो उन सबको एडवांटेज हमको कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में मिलेगा. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन क्रेडाई. हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम सावन लड्डा है. मैं वर्की का फाउंडर हूँ. वर्की इंदौर से शुरू हुआ एक स्टार्टअप है जो एक नेशनल ब्रांड बन गया है. हम लोग कंपनीज़ को ऑफिस स्पेसेस देते हैं रेंट पे. सो आप लोग अगर को-वर्किंग स्पेसेस अगर आपने सुना हो इंडस्ट्री या फ्लेक्स स्पेसेस बोलते हैं, तो हम लोग मैनेज्ड ऑफिस स्पेस की इंडस्ट्री में है. कुछ 20 लाख फुट जगह हम लोग पूरे इंडिया में अभी मैनेज कर रहे हैं. 20 शहरों में हमारे ऑपरेशंस हैं और हमने इंदौर से इसकी शुरुआत की है. हम लोग गवर्नमेंट्स के साथ क्लोजली काम करते हैं और काफ़ी कंपनीज़ के रिलोकेशन हमने इंदौर में कराए हैं. IT कंपनीज़, कॉल सेंटर्स और पॉलिसी मेकिंग में भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. मैं इसके अलावा टाई का प्रेसिडेंट हूँ, MP का. एंड हम लोग एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट इंदौर में करने जा रहे हैं, टाई ग्लोबल समिट, which is going to happen in December. So yes, this was quickly about me. Thank you. Excellent. मंत्री जी. Myself सुमित मंत्री. मैं इंदौर में शुभम ग्रुप के नाम से लास्ट 25 ईयर्स से वर्किंग कर रहा हूँ और क्रेडाई में भी फ्रॉम 2010 में जुड़ा हुआ हूँ और अभी क्रेडाई सेक्रेटरी इंदौर हूँ. हमारे अराउंड 4.2 मिलियन स्क्वायर फीट हमारा ग्रुप अभी तक डिलीवर कर चुका है लास्ट 25 ईयर्स में, जिसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग भी हैं और रेसिडेंशियल टाउनशिप्स प्लॉटेड डेवलपमेंट हम लोग डिलीवर कर चुके हैं. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हमारे अराउंड 3 मिलियन स्क्वायर फीट के हैं जो शुभम ग्रुप के नाम से इंदौर के सभी एरियाज़ में आ रहे हैं. और मैं समझता हूँ ये रियल्टी प्लस का बहुत अच्छा इवेंट है जिसके थ्रू हम हमारी शहर के बारे में, यहाँ के रूल्स के बारे में, यहाँ के रियल एस्टेट के बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करके और यहाँ से बहुत अच्छा मतलब टेक अवे लेके जा सकते हैं. और ऐसे इवेंट से हम लोगों को बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज कहीं ना कहीं आइडिया शेयरिंग होता है और किसी भी एक ग्रोथ का स्टार्टिंग आइडिया ही है. तो मैं समझता हूँ ऐसे इवेंट्स होना चाहिए और शुभम ग्रुप की ओर से मैं रियल्टी प्लस को बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद देना चाहूँ. विवेक जी. गुड आफ्टरनून. आई एम विवेक दम्मानी, मैनेजिंग डायरेक्टर वाइब्रेंट ग्रुप. हम लोग वाइब्रेंट ग्रुप से रियल एस्टेट के सभी सेगमेंट में काम कर रहे हैं. रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सभी सेगमेंट में काम करते हैं. प्लॉटिंग, अपार्टमेंट सभी में काम करते हैं. लास्ट 18 साल से हम लोग रियल एस्टेट में हैं. और मैं नरेटको का MP प्रेसिडेंट भी हूँ. नरेटको एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द एजेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट. और मैं रियलिटी प्लस को धन्यवाद देता हूँ इस तरह के आयोजन के लिए
कि एक थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए एक अच्छा एरिया है। थैंक यू। Vivek? Hi everyone, I am Vivek Chok, director of M-Chok Group. We have been into the real estate business since last 4+ decades. We started in 1982 and have successfully delivered 100+ projects in Indore, and we have a presence in retail, commercial, plotted developments, high-rise township and malls, and we have trust of more than 10,000+ customers to our belt. And even now we are coming up with a lot of expansion plans with a lot of high-rise townships and plotted developments across Indore and Ujjain. Thank you. एक्चुअली सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि हम यहाँ पर अपनी राष्ट्रभाषा में बात कर रहे हैं, तो इंदौर के लिए ज़रा तालियां बजाइए। वी शुड बी प्राउड अबाउट आवर लैंग्वेज, बिकॉज एवरी कंट्री दैट यू गो इन द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप एंड मैनी अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वहाँ पर आप जर्मनी में जाते हो तो आई एम श्योर पैनल डिस्कशन जर्मन में होता है, आप पोलैंड में जाते हो तो पोलिश में होता है, बट इंडिया में हम कई बारी अपनी ही भाषा में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने से हमें कई बारी लगता है कि शायद अगर हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो या तो हम इतने मॉडर्न नहीं हैं या हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल कोशिश करूँगा शुद्ध पंजाबी हिंदी में बात करूँ, बिकॉज हमारी हिंदी तो पंजाबी हिंदी है सर, तो इतनी स्पष्ट नहीं है। वैसे यहाँ गजेंद्र नारंग जी बैठे हुए हैं जो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो उनकी हिंदी कई बारी मुझे ही नहीं समझ आती, बट एक्सीलेंट, दिस वाज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। इस पैनल के अंदर एक बड़ी खासियत है। खासियत ये है कि आपके पास क्रेडाई की रिप्रेजेंटेशन है, नरेडको की रिप्रेजेंटेशन है, टाई की रिप्रेजेंटेशन है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की रिप्रेजेंटेशन है। So this is a very, very unique thing that we have in this. And for TAI, you know, I mentor the Earth Fund, which is a PropTech fund backed by Brigade and Nikhil Kamat's Gruhas. So we do a lot of work on the startup. I am a mentor on IIT Mumbai's Accelerator as well as India Accelerator. So very good to see what you are doing, Savan. So excellent. So I'll start. मेरा पहला क्वेश्चन राज आपसे, आपने बोला आप लोग हाई राइज करते हैं और इंदौर में तो मुझे हाई राइज दिख नहीं रहा है अभी, बट आपने बोला इंदौर वो है जो अहमदाबाद 10 साल पहले था। और बैनर्जी साहब ने एक चीज़ बोली कि जो 7-8 शहर हैं इंदौर के आसपास, वो इंदौर को एक मेट्रो बना सकते हैं। और मेट्रो तब बनता है जब डिमांड सिर्फ उस शहर से नहीं आती, उस शहर के आसपास से आती है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, बिकॉज इंदौर की अपॉर्चुनिटी, अगर इंदौर डिजिटल मार्केटिंग और टेक और जो इतनी डिसरप्शन टेक्नोलॉजी में हो रही है, अगर वो ले ले तो आप हैरान हो जाएंगे, आपका डिमांड 10x हो सकता है 1 साल के अंदर। बिकॉज जितने मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश के बाहर हैं, वो सब आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं अगर मार्केटिंग की जाए। बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। और आज की डेट में आप हैरान हो जाएंगे, बेंगलोर के अंदर 30% सेल बेंगलोर के बाहर से होती है, मुंबई के अंदर 50% सेल मुंबई के बाहर से होती है, NCR के अंदर 25% सेल बाहर से होती है। उन लोगों की होती है, मैं NRIs की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की होती है जो गुड़गांव से हैं, नोएडा से हैं, बट वहाँ पर रहते नहीं हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंदौर को आगे बढ़ाने की। अगर 1 साल के अंदर आप सब जितने लोग चैनल पार्टनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कम से कम 4, 5, 6, 7 शहरों के अंदर मार्केटिंग करें थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। कमिंग बैक, तो हाई राइज तो है नहीं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है, हाउ विल यू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड हाउ डू यू सी द ट्रेंड कि यहाँ पर हाई राइज आएगी? क्या यहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स आएंगी जैसे बेंगलोर के अंदर है, अहमदाबाद में है और बाकी मेट्रोज में है? राज। सो मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो वहाँ पे ना टाउन प्लानिंग स्कीम का कंसेप्ट है, TP स्कीम का कंसेप्ट है, जो महाराष्ट्र एंड गुजरात में स्टार्ट हुआ था। वहाँ क्या करते हैं कि अराउंड 100 हेक्टेयर्स का एरिया एक टाउन प्लानिंग स्कीम में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ अराउंड 40% एरिया गोज इनटू ड्रेनेज, रोड्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड बाकी 60% एरिया लैंड ओनर को मिलता है। तो यूजुअली बाकी जगह क्या होता है कि पहले गवर्नमेंट पूरे लैंड खरीदती है, डेवलप करती है, फिर वापस बेचती है।
इधर क्या होता है कि सपोज़ मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो वहाँ पे जब टीपी स्कीम आएगी तो मुझे मेरी खेती की ज़मीन या कुछ अलग अलग शेप की है, तो मुझे स्क्वायर रेक्टेंगल 60 एकड़ का जगह 60 वार का जगह मिलेगा, एंड बाकी में गवर्नमेंट रोड रास्ते ड्रेनेज खुद बना के देगी। अब बोलेंगे कि मुझे तो 60% एरिया ही मिला, 40% एरिया गया, लेकिन जहाँ पे भी टीपी स्कीम होती है वहाँ का लैंड का वैल्यू सीधा डबल हो जाता है, कि वहाँ पे डेवलपमेंट आता है। अब जैसे टीपी स्कीम पड़ती है उसके ऊपर डेवलपमेंट की गाइडलाइंस है, जो गुजरात GDCR बोलते हैं, गुजरात डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस। वहाँ पर क्या है कि हाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन द विड्थ ऑफ द रोड। 18 मीटर का रोड है, 24 मीटर का रोड है, 32 मीटर का रोड है कि 40 मीटर का रोड है, एंड जितना विड्थ ऑफ रोड उतना हाइट अलाउड है। सो यूजुअली 45 मीटर्स, 70 मीटर्स एंड 100+ मीटर्स अभी 3 सेगमेंट्स में हो रहा है। अब बात करूँ इंदौर की, तो इधर मैंने देखा कि मेजर 40 मीटर रोड सब जगह, जो आपका MR 7, 8, 11 सारे 40 मीटर रोड अभी से बन गए। ऐसा अहमदाबाद में अब मेजर 2-3 रोड ही है जहाँ पे सारी भी 100 मीटर प्लस बिल्डिंग्स बन रही है। सो जैसे मैं मेरे इंट्रोडक्शन में बोला था कि इधर जो इंफ्रा है रोड्स का एंड ड्रेनेज का, दैट इज़ मेरे हिसाब से अभी इज इक्विवेलेंट फॉर 100 मीटर प्लस बिल्डिंग। अब उसमें और चीज़ क्या क्या आएगी, विच इज़ कॉस्टिंग एंड टाइमलाइन। अहमदाबाद में 15 माले का बिल्डिंग है, 20 माले का, 30 माले का कि 35 माले का, टाइमलाइन सेम है, 3 साल में बिल्डिंग करना है। तो जैसे हाईरेज पे जाते हैं वैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है। अभी शायद अहमदाबाद में 300 टावर क्रेन चल रही होगी। बूम प्लेसर भी, जो क्लाइंबिंग बूम प्लेसर है वो 20 से 25 चल रहे होंगे हाईरेज बिल्डिंग्स में। कंक्रीट पम्प्स जो बोल, जैसे आप हाइट पे जाते तो कंक्रीट ऊपर तक जाने की टेक्नोलॉजी बहुत अलग चाहिए। तो अभी कमर्शियल RMC प्लांट्स इतने सारे चल रहे, शायद 100+ RMC प्लांट्स कमर्शियल चल रहे होंगे। माइवन टेक्नोलॉजी आ गई, इज एल्यूमिनियम बेस्ड फॉर्मवर्क। तो हाई राइज में जाने के लिए सिंस मेन गेम है कैश फ्लो की, इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं कि अगर कैश फ्लो बराबर नहीं हुआ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट डूब जाएगा। तो इसलिए फॉर टाइमलाइन पहले तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जो बैकबोन होगा कि स्टील सप्लायर्स, RMC प्लांट्स, फॉर्मवर्क टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स, लेबर वर्कफोर्स। इधर में वो भी देखा काफ़ी लेबर्स लोकल वर्कफोर्स से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अहमदाबाद में लोकल वर्कफोर्स है ही नहीं, सारी वर्कफोर्स माइग्रेंट्स आते हैं। एंड अभी ऑब्वियसली एज वी ऑल नो कि उसका भी शॉर्टेज होने वाला है। तो द डिपेंडेंस ऑन मोर टेक्नोलॉजी, प्रीकास्ट अभी चालू हो गया काफ़ी लेवल पे। सो ये जो इश्यूज़ है वो उसको रिजॉल्व करने के लिए वील हैव टू मेक सम न्यू इनिशिएटिव्स। टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ेगी इंदौर में। जैसे सर ने बोला था कि इन्वेस्टिंग ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड राइट नाउ। जो बाहर की टेक्नोलॉजीज चल रही है, जो शायद अहमदाबाद में 10 साल पहले आई थी। सो वी परचेज आवर फर्स्ट टावर क्रेन इन 2013 में, तब 45 मीटर बिल्डिंग्स चालू हुए थे। आज हमारी खुद की 35 टावर क्रेन्स ऑनगोइंग चल रही है। सो पहली टावर क्रेन जब आई थी तब यूजुअली ऐसा था कि जर्मनी के, इंडिया के तब प्लेयर्स भी नहीं थे, जर्मनी के वेंडर्स को बुलाया था, उनसे मिला तो उनके इंजीनियर को 3 महीने रखा था कि आप प्रॉपर चलनी चाहिए, मेरी टीम को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो फिर जाना आप वापस। तो नाउ इज़ द टाइम फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। काफ़ी अभी जो पहले यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंडेंट थे, अभी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बहुत आ गए, इंडियन पार्टनर्स भी आ गए, तो उनको इधर लाना पड़ेगा। वी हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। एंड मैं जितना मैं देखा हूँ कि इधर सेल्स का रेट्स और वो सब का आर वेरी इक्विवेलेंट टू अहमदाबाद। सो शायद जितना टेक्नोलॉजी से क्वालिटी एंड स्पीड बढ़ेगा तो रियल एस्टेट विल इम्प्रूव मच मोर। नहीं, डेफिनेटली आपका इधर आना ही एक चीज़ की बड़ी क्रिटिकल चीज़ बताता है, दैट यू सी द पोटेंशियल। और जनरली क्या होता है कि मोस्टली जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सीइंग पोटेंशियल और एक एंटरप्रेन्योर वो पोटेंशियल देख रहा होता है, तो वो एंटरप्रेन्योर जनरली आगे निकल जाता है। और मोस्टली मैंने ये देखा है जब भी किसी एंटरप्रेन्योर को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यहाँ पे तो हाई राइज हो ही नहीं सकता, मेरे ख्याल से 10 साल के बाद हम सब यहाँ होंगे एंड वी माइट बी सीइंग अ वेरी वेरी डिफरेंट इंदौर बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज़ ग्रेट। संदीप जी, आप यू आर द वॉइस ऑफ क्रेडाई इन मध्य प्रदेश। एक चीज़ जो राज ने बोली वो ये बोली कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बैंगलोर के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, बैंगलोर ग्रो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अहमदाबाद में भी यही प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी बैनर्जी साहब ने बोला, आई थिंक ही इज़ नॉट हेयर, कि हमारा FAR बहुत
बहुत कम है इधर, बेसिस द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर एक कोई चीज़ हो जो आपको लगता है होनी चाहिए इंदौर के अंदर एट अ पॉलिसी लेवल, जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ ला के दे सकती है इंदौर रियल एस्टेट में, वो आपके हिसाब से क्या होगी और क्यों? कि इंदौर के सारे प्लस पॉइंट हम लोग बार बार आपस में डिस्कस कर भी रहे हैं, और इंदौर में पोटेंशियल है, तभी हमारे यहाँ गुजरात से लोग आके, आपके जैसे राज्य जैसे लोग आके काम करना चाह रहे हैं। बेसिकली इशू क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, पॉलिसीज़ फ्रेम हो भी रही हैं। जो आपने सुना होगा बीजेपी का एक स्टेटमेंट चलता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हम उसमें चाहते हैं पेस ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, सारी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पेस स्लो है। वी डोंट वांट एनी सिंगल विंडो अप्रूवल, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पेस ऑफ डूइंग चाहिए। जो पॉलिसीज़ सरकार लगा रही है, ला रही है, पॉलिसीज़ बन रही है, वो फास्ट प्रोसेस में बने। इंदौर उससे ही आगे निकल जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे जो इंदौर है, इंदौर एक सेल्फ ग्रोन सिटी है। इंदौर को गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई एडवांटेज शुरू में मिला नहीं। इंदौर में अगर हमारे रियल एस्टेट के प्लेयर्स का सारा डेवलपमेंट वर्क हटा देंगे तो इंदौर सिर्फ एक छोटा गांव बन के रह जाएगा। इंदौर में जितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं पूरे इंदौर में, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, मल्टी स्टोरीज हैं, मॉल्स हैं, सब प्राइवेट लोगों के बनाए हुए हैं। तो हम सब लोगों में विल पावर है। इंदौर को क्लीन करने के लिए सरकार और पब्लिक दोनों का साथ रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट अगर क्लीन करने निकल जाए और पब्लिक की मंशा नहीं होगी तो क्लीन नहीं हो पाएगा। हम कंधे से कंधा मिला के हर काम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमको ये चाहिए कि गवर्नमेंट की पेस बढ़ानी है। इसलिए हमारी डिमांड सिर्फ एक है, आपकी पेस बढ़ा लीजिए, इंदौर बेंगलोर से भी आगे निकल जाएगा। आप तो गुजरात की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक्चुअली रियल एस्टेट से ज़्यादा रेजिलिएंट इंडस्ट्री कोई है ही नहीं, और रियल एस्टेट प्रमोटर से तगड़ा आदमी कोई नहीं मैंने देखा है। मैं तो बैंकिंग में रहा हूँ, मैं थैंकफुली, क्योंकि मैं फंडिंग भी की हुई है, मैंने डेवलपमेंट भी की हुई है, मैं JLL का CEO था, मैं एनारॉक का फर्स्ट CEO था, मैं भारतीय सिटी का CEO था जो 150 एकड़ की टाउनशिप है, मैं बजाज फाइनेंस का ग्रुप हेड था, मैंने काफ़ी डेवलपर्स को पैसा दिया हुआ है। रियल एस्टेट डेवलपर से ज़्यादा तगड़ा और ऑप्टिमिस्टिक इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, स्पेशली अगर वो इंडिया में हो तो उनके लिए तो ताली बजनी ही चाहिए। बिकॉज मैंने पता नहीं कितने साइकिल देखे हैं अप्स एंड डाउन्स के, और वो बोलते हैं यार ये ख़त्म हो जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाता है, बोलते हैं ख़त्म हो जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाता है। बिकॉज ये अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं, और रियल एस्टेट डेवलपर्स का रोल ना सिर्फ इंदौर, इस पूरी कंट्री में इतना बड़ा है कि उसके बिना we would not have been where we are. And I think the time has come when the policy, pace, ease of doing business will definitely start playing in. I'm also a member of the ease of doing business for CII, sir. And what you are saying is absolutely right. I think theory और practice के अंदर थोड़ा gap है जिसको हमें cover करना है. So thank you so much for that. Savan, you know, you are in flex spaces. Actually जिस industry में सावन है, अभी वही इंडस्ट्री अच्छा कर रही है रियल एस्टेट के अंदर। तो बाकी सबका तो जो हाल है थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट पिछले 3-4 साल से आई नो लॉट ऑफ को वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स, इनक्यू स्पेस, संजय चौधरी, you know, I've worked very closely with him. 10 years back he came to me to become his partner, but you know, I am a reluctant entrepreneur. मैं आपके जैसा तगड़ा आदमी नहीं हूँ, तो मुझे तनख्वाह की इतनी लत लगी हुई थी कि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। बट दिस इज वन इंडस्ट्री विच इज डूइंग वेरी वेल। एंड सावन, माई क्वेश्चन टू यू इज अबाउट इंदौर एंड मध्य प्रदेश के जो आपके कोवर्किंग ऑफिसेज यहाँ पर हैं, उनके क्लाइंट्स कौन हैं? इज इट द SME ऑफ द लोकल SME, और आर देयर कंपनीज coming from outside of Madhya Pradesh who are taking you know, these co-working spaces? So please explain कि ये अभी आपका जो target segment है वो कौन है, and आप co-working space में क्या growth देख रहे हैं within Indore and Madhya Pradesh, not outside? Okay, so answering your question, first is 60% demand is local. All our SMEs who are growing, the IT companies of the town, they are growing, they take additional space, and there is a consumption of additional space. 40% demand is being driven by outside companies. So these are MNCs, now GCs are coming in.
सो BPOs आर कमिंग इन टू इंदौर. इंदौर एक बहुत बड़ा बैक ऑफिस हब बन गया है कंट्री का अभी. तो सुपर्ब डिमांड है बैक ऑफिस के लिए, कॉल सेंटर्स के लिए. इंदौर का हरदम डिमांड रहता है, मतलब 1000 सीट महीने का तो सिर्फ बैक ऑफिस में जाता ही जाता है इंदौर में. टॉकिंग अबाउट इंदौर ग्रोथ एंड डिमांड, तो इंदौर का ग्रोथ अब स्लो हो जाएगा क्योंकि जो हमारे साथ वाले रियल स्टेट के जो डेवलपर्स हैं, जिस तरीके का प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बना नहीं रहे हैं. अब मैं बोलूँगा क्या बना नहीं रहे, वैसे मैंने पर्सनली सब लोगों से बोला भी है, बात भी करी है, समझाया भी है. ग्रेड ए एसेट चाहिए, बड़ी प्लेट्स चाहिए और स्ट्राटा सेल मत करो. आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ. आप इंदौर में 1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह बना दो, ग्रेड ए एसेट, पूरा कंजम्पशन हो जाएगा. बट हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनता ही नहीं है. वैसे 3-4 चीज़ें हमारी इंडस्ट्री को चाहिए. एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस लोकेशन, मतलब लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बिल्डिंग कंप्लाइंट होनी चाहिए, ग्रेड ए एसेट हो, और एमिनिटीज़ वाइज कुछ बेसिक कॉमन एमिनिटीज़ हम डाल दें, पार्किंग अच्छी डाल दें. मतलब अगर गवर्नमेंट बोलती है कि 100 पार्किंग है तो आप 100 की जगह 150 पार्किंग डाल दो. बिकॉज जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है सिटी की, जिस तरीके का पैसा आ रहा है एम्प्लॉयज़ के पास में, हर आदमी तो गाड़ी लेके आ जाता है. अब आज सिटी की बात करें तो इतनी सारी कार्स हैं इन एम्प्लॉयज़ के पास में, 10, 12, 15 लाख रुपए सैलरी होती है. आदमी सबसे पहला काम करता है गाड़ी लेने का. अब गाड़ी लेके आता है तो ऑफिस में जगह ही नहीं है. तो बिल्डिंग का सिलेक्शन आज एम्प्लॉयर के लिए होता है कि यार मेरे को तो 100 कार चाहिए, 50-200 आदमी के बीच में 100 कार 50 कार मिलेगी क्या? आप ऐसा कोई एसेट बताओ. तो कहीं ना कहीं हमारा अगर डेवलपर्स का प्रोडक्ट ऐसा बनने लग जाए जो अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छी पार्किंग, अच्छे फ्लोर प्लेट्स हो, मैं बोलता हूँ डिमांड की कोई कमी नहीं. कंपनीज वापस इंदौर से जा रही है. मतलब लिटरली ऐसा होता है कि 4 में से 3 कंपनीज तो इंदौर छोड़ के चली जाती है. इवैल्यूएशन में आती है कि अच्छा हम लोग इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, 5-6 सिटीज़ के बीच में इवैल्यूएट कर रहे हैं, बट यार इंदौर में तो हमें वैसा एसेट मिल ही नहीं रहा जैसा चाहिए. तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और जो B कैटेगरी, C कैटेगरी का प्रोडक्ट बनता है, छोटे छोटे ऑफिसेज बना देते हैं, बेच देते हैं, फिर वो अल्टीमेटली किसी के काम नहीं आता. उसके लिए फिर वो SME यूज़र ही काम आता है. तो एक पॉइंट ये है कि अगर इंदौर को यहाँ से ग्रो करना है, मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 4 साल में इंदौर कैन ट्रिपल the capacity consumption of flex offices in the city. So that is the actual demand and consumption which is possible. But support करने के लिए product बनना चाहिए. Actually you are very right, but क्या है ना, ये catch-22 है. Office space needs lot of capital. Grade A needs lot of capital. उसके लिए आपको financiers चाहिए, आपको private equity players चाहिए, global players चाहिए. You will need a Blackstone or a Brookfield or a CapitaLand to come to Indore, and I am sure it will come when players like you will be there. और वो एक जैसे आपका वो कॉरिडोर बना है, सुपर कॉरिडोर, फिर इन्फोसिस आया और TCS आया. हर टैक्सी वाला भी प्राउडली बोलता है ये सुपर कॉरिडोर है, यहाँ पे इन्फोसिस है, यहाँ पे TCS था, वो नहीं है. तो आई थिंक उसके लिए ना कैपिटल एंड द ओवरऑल strategy in terms of bringing some large capital to Bangalore or a very large real estate player to Bangalore will be very important. For example, Godrej is a residential player, but when Godrej came to Indore, वो भी plotted में ही आए, वो high rise में नहीं आए. तो ये सब capital की गेम है, demand की गेम है. थोड़ा डर लगता है लोगों को, but I think it will happen. But एक चीज़ और, आप इंदौर के बारे में जो बोल रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, डोंट वरी, दिल्ली से भी लोग बाहर जा रहे हैं. दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया होते हुए सारा ऑफिस गुड़गांव और नोएडा में बना है. एंड नाउ दिल्ली इज डूइंग अ मास्टर प्लानिंग टू से, बिकॉज क्या होता है वर्ल्ड वाइड, क्या होता है वर्ल्ड वाइड, ये होता है कि आप शहर में काम करते हो और सबर्ब में रहते हो. आप सैन फ्रांसिस्को के अंदर काम करने जाते हो और सैन फ्रांसिस्को के सबर्ब के अंदर यूएस में रहते हो. यहाँ क्या होता है, आप सबर्ब में काम करने जाते हो, गुड़गांव सबर्ब था, और अब शहर में रहने आते हो दिल्ली. फिर क्या हुआ, दिल्ली को जो रहने वाले थे उन्होंने भी दिल्ली को बेचा, गुड़गांव में ही गए, वहीं रहे, वहीं ऑफिस आया. सो ये एक सिस्टमिक इशू है पुराने शहरों का.
और वहाँ पर जो श्रीवास्तव जी ने बात की, द पेस ऑफ रिफॉर्म हैज टू बी फास्टर. यस, आप कुछ बोल रहे थे. Yeah, so I wanted to say one thing. मैं इनफैक्ट हम लोग 2 दिन पहले भी मिले थे. रियल स्टेट अगर किसी सिटी को प्ले करना है, सो देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ ITES. अगर मैं बोलता हूँ इंदौर में 300-400 IT कंपनीज आ जाती है, 20-25 हज़ार लोग वापस से इंदौर आ जाते हैं, जो इंदौर के ही ओरिजिनली, जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे, तो हम लोगों ने एक सर्वे करा हुआ है. 40,000 एम्प्लॉयज़, good employees, they are nationally everywhere in Bangalore, Pune, Bombay, and they want to come to Indore, but companies नहीं है. तो अगर मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक इंदौर एक अच्छा ब्रांड है. रियल स्टेट अगर इसको अच्छे से प्रमोट कर सकता है, 200-300 IT कंपनीज अगर इंदौर आ जाए, साथ में हमें 20-30 हज़ार एम्प्लॉयज़ आएंगे. वो 20-30 हज़ार एम्प्लॉय प्लॉट खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, प्रीमियम रेसिडेंसेस खरीदेगा, और ऑटोमेटिकली शहर का रियल स्टेट चल जाएगा. जो आपने भी एक पॉइंट बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है. इंदौर के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए एक शहर के. मार्केटिंग बहुत वीक है, बिकॉज इंदौर और इसके आसपास जो 6-7 शहर हैं, एक्चुअली दिस इज वन प्लेस विच कैन बिकम अ मेट्रो. बट डेफिनेटली आई थिंक इंदौर इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स which is not able to showcase the potential the city has, and I think all of you have to play that part, because there is no other city in the country where there are 6-7 cities like this. And आपके पास इंदौर भी है, आपके पास उज्जैन है, आसपास रिलीजियस टूरिज्म है, मऊ है, कंटोनमेंट एरिया है, और ये सारे छोटे छोटे शहर सैटेलाइट टाउन है. आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं. चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, आज उसको ट्राई सिटी बोलते हैं, उसको चंडीगढ़ नहीं बोलते. सो आई थिंक हमारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो यहां पर आ सकती है, व्हाट क्रेडाई, नरेडको कैन डू, इवन टाई कैन डू व्हेन यू डू योर इवेंट्स इन डिसम्बर, इज वन, डेफिनेटली ब्रिंग इन ट्राई एंड हम पॉलिसी रिफॉर्म की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं. अब उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हमारा कंट्रोल मार्केटिंग के ऊपर है एज एसोसिएशंस, एंड वी शुड ट्राई एंड गेट. सी व्हाट हैपेंस इज, जो आदमी 12 लाख बैंगलोर में कमा रहा है और जो आदमी 12 लाख इंदौर में कमा रहा है, इंदौर का 12 लाख 24 लाख के बराबर है, और बैंगलोर का 12 लाख 6 लाख के बराबर है. तो जो अभी सावन ने बात की है, पीपल वांट टू कम, दे वांट टू कम बैक टू स्मॉलर सिटीज. एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, ब्रिजेस बन गए हैं, डैम्स बन गए हैं, हाईवेज बन गए हैं, मॉल्स आ गए हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू बी डन, बट पीपल, देयर लाइफस्टाइल कैन रियली इंप्रूव. सो देयर इज अ पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्वर्सेशन बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट. मंत्री जी, माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने तो पिछले 3 डेकेड्स, 2 से 3 डेकेड्स में आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि डिमांड साइड के अंदर जो चैलेंजेस अभी 2-3 साल के बाद दोबारा आ जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर होती है, फिर दोबारा आ जाते हैं, वो चैलेंजेस क्यों आते हैं? एज अ डेवलपर आपको क्या लगता है कि ये ऐसा ही रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी? प्रोडक्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, डिमांड जनरेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, और आपने ये जो पूरी जर्नी देखी है उससे आपकी क्या लर्निंग है? अश्विंदर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. सिटी में कहीं ना कहीं हम जो आप बोल रहे हैं कि क्यों यहाँ हर 3-4 साल में एक वापस थोड़ा सा स्लैग आता है, फिर शहर चलता है. हमारे शहर की कई सारी खासियतें, तो कई सारी इश्यूज भी हैं. हमारे यहाँ रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत इजीली हर नया व्यक्ति आके स्टार्ट कर देता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकिंग या यहाँ का जो एक लुक्रेटिव ऑफर लगता है आदमी को कि यार रियल एस्टेट के अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम बहुत अच्छा. बल्कि यहाँ का जो कस्टमर है, हम उसको भी यही मैसेज करना चाहेंगे कि आप प्रोडक्ट को, मतलब आप कॉलोनी या आप किसी बिल्डिंग के अंदर कोई अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो पहले ये देखो कि जिस ग्रुप से आप खरीद रहे हो उसने डिलीवर कितने प्रोजेक्ट्स करे.
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे स्टार्ट तो आदमी कर देता है, लैंड लेके सैंक्शन करा के बिल्डिंग बना देता है, कॉलोनी काट देता है, बट वो जो कस्टमर है ना वो उतना ज़्यादा सजग नहीं है इस पार्ट पे। उसको ये देखना चाहिए कि जिस ग्रुप से मैं आज प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए। चालू करना एक अलग पार्ट है, बिकॉज एक स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, बट उसको अगर वो ये देखे कि इस ग्रुप ने कितने कंप्लीट किए तो वो हमेशा एक प्रॉपर चीज़ वो ले पाएगा। साथ ही शहर के अंदर एक सैचुरेशन तो मैं समझता हूँ क्या होता है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आज नई टाउनशिप लॉन्च हुई और उसके 1 महीने बाद क्या रेट है, 2 महीने बाद क्या रेट है, क्योंकि इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट थोड़ा ज़्यादा है। बट ये जो फेज़ अभी चल रहा है ये यूज़र बेस्ड फेज है, और एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है वो ईयरली 10%, 20%, 25% ग्रोथ देना चाहिए, और वो मैं समझता हूँ कहीं कोई ख़राब मार्केट नहीं, यूज़र बेस्ड मार्केट है। इन्वेस्टर जो कि टेम्पररीली पार्क करता था फंड्स को, वो थोड़ा सा अभी इंटरेस्ट कम ले रहा है, बिकॉज ओवर सप्लाइड हुआ है थोड़ा सा मार्केट। बट कस्टमर आज भी अच्छा है, अच्छी प्राइजेस में उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, और वो रेगुलर सेल परचेज उस पार्ट की हो रही है। आउटस्टैंडिंग आंसर। आई थिंक मुझे भी हमेशा यही लगता है कि मार्केट कभी स्लो नहीं होती। जहाँ पे एंड यूज़र होता है वहाँ पे मार्केट स्लो नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब मार्केट तेज़ होती है और जब आपको 50% की ग्रोथ मिलती है, उसका मतलब ये नहीं है कि 50% की ग्रोथ जो है वो सही ग्रोथ है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर आप अपना बिजनेस 20% की ग्रोथ पे बनाएंगे और 20% की ग्रोथ अगर आपको मिल रही है तो मार्केट ठीक है, और अगर उस 20 की जगह आपने 3 सालों में 50% की ग्रोथ की, नॉट बैड, बट अगर आप एंड यूजर को फोकस में रख के करें और आहिस्ते आहिस्ते चलते रहें तो आई थिंक मार्केट कभी भी स्लो नहीं होगा। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, एंड वी कैन डिस्कस मोर। विवेक जी, मेरा क्वेश्चन सेम है आपके लिए जो संदीप जी के लिए था। आपके हिसाब से कौन सी एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज आप भी नरेटको के अंदर प्रेसिडेंट हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन द पॉलिसी साइड विद द गवर्नमेंट, कौन सी एक चीज़ है जो अगर हो जाए उससे इंदौर की रियल एस्टेट को बूस्ट मिल सकता है, अदर देन व्हाट श्रीवास्तव जी सेड? संदीप भैया के बोलने के बाद जगह तो नहीं बचती है सेम क्वेश्चन के लिए। फिर भी अगर एफएआर जो मेन इशू है अभी वर्टिकल ग्रोथ के लिए, वो एफएआर है। एफएआर हमारे यहाँ बहुत कम है, 1.2 1.5 जो है एफएआर है, बहुत ही कम है। वो वर्टिकल ग्रोथ नहीं आ पा रही उसके कारण। जैसा कि अभी शाह ने भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट एफएआर बहुत वो है। तो ये एफएआर के ऊपर कुछ काम चल रहा है अभी? हम लोग काफ़ी दिन से नरेटको, क्रेडाई से, एसोसिएशन से, दोनों एसोसिएशन से काफ़ी दिन से जो है गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और अभी बनर्जी साहब भी बोल के गए कि बहुत जल्दी कुछ ड्राफ्ट इशू होगा उसमें, क्योंकि वो उसके बगैर वर्टिकल ग्रोथ नहीं आएगी। और जहाँ पर एफएआर दिया हुआ है कॉरिडोर पर, वहाँ पर अभी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है उस एफएआर के, तो वो मिसमैच है अभी। तो गवर्नमेंट कर रही है, बाकी गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ अच्छी है, धीरे धीरे सुधर के आ रही है। पुराना ड्राफ्ट है उसको सुधार रहे हैं, कर रहे हैं काम उस पर, तो अच्छा है मार्केट। एक्चुअली 2 पॉइंट हैं। एक तो जो सावन ने बोला, यू नीड ग्रेड ए ऑफिसेस फॉर अ सिटी टू रियली ग्रो एंड फॉर अ सिटी लाइक इंदौर टू लिव अप टू इट्स पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा ये है कि जो हमें पॉलिसी के अंदर चेंजेस चाहिए, एक वो चेंजेस चाहिए और दूसरा एक स्पीड से चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। Things should move faster, and that is when players like Hitech will come and start contributing and partnering with developers. विवेक जी, आप लास्ट में बैठे थे इसलिए क्वेश्चन भी लास्ट में है। आपने सबकी बातें सुन ली हैं, तो आपका आंसर सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और आप ही थे जिसने सिर्फ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दी थी, तो इसलिए पहले तो तालियां बजाओ जी। सो विवेक जी, इंदौर के अंदर जो ये सारा एग्जीक्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी है, आई एम श्योर यू हैव सीन ऑल द बिग सिटीज ऑफ इंडिया, यू हैव सीन ओवरसीज सिटीज, यू आर वेल ट्रैवल्ड। आपको क्या लगता है हमारी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन किस तरह का है?
किस तरह की डिमांड है, और क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएंगी कि अभी इंदौर थोड़ा पीछे है इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट? एक्चुअली इंडिया इन रियल एस्टेट relatively पीछे है when it comes to true quality. If you go to Singapore, if you go to Hong Kong, if you go to any Southeast Asian country, जब आप एक quality of the building देखते हो, आपको immediately पता चल जाता है कि उस building की quality में एक फ़र्क है. But आपके हिसाब से अभी क्या कंस्ट्रक्शन के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर क्या फोकस है, और अगर आप अच्छी क्वालिटी बनाते हो तो क्या जो क्लाइंट है और आपका कस्टमर है वो उसको अप्रिशिएट करके उसके लिए प्राइस देगा कि नहीं देगा? देखिए सिटी तो काफ़ी, आई विल स्पीक इन हिंदी, अब हिंदी में बोलता हूँ. देखिए सिटी काफ़ी कर रही है डेवलप. यदि आप लास्ट डेकेड देखिए तो इंदौर में तब सिनेरियो ऐसा होता था कि 6 मंजिल के ऊपर कोई भी बिल्डिंग आती थी वो हाई राइज कहलाती थी. मतलब टावर क्रेन्स तो इंदौर में देखने को ही नहीं मिलती थी. अभी जैसे राज ने भी बताया कि 300 प्लस टावर क्रेन्स होंगे ही पूरे अहमदाबाद में, 35 तो अकेले उन्हीं के पास है. तो अब क्या है, जो नेक्स्ट डेकेड जो आ रहा है, अभी जो नेक्स्ट डेकेड है, नेक्स्ट डेकेड इज अ डेकेड ऑफ क्वालिटी आई वुड से rather than the quantity. पहले हाई राइजेस भी नहीं होती थी सेंशन, अब कई हाई राइजेस तो ऐसी है 90 मीटर्स हाइट की भी बिल्डिंग सेंशन हो गई है. तो उससे शो होता है कि अब जो है डेवलपर्स भी यहाँ के वो अब एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं कि अब क्वालिटी लेके आएँ. एंड ज़रूर 100%, मतलब अगर आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओ इंदौर में तो देर आर टेकर्स फॉर इट, एंड उसका प्रीमियम भी मिलता है हमको. एंड थोड़ा सा एक चीज़ जो मैं कहूँगा जो जहाँ हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं अभी, देखिए सिटी तो ग्रो कर रही है, अब रादर एम्बिशंस आर फास्टर देन द ओवरऑल इकोसिस्टम आई वुड से. थोड़ा हम जो जैसे जेडी जो जॉइंट डायरेक्टर बनर्जी जी, उन्होंने भी कहा कि R&D एंड इस पे हम लोग कम, स्किल डेवलपमेंट इस पे हम लोग थोड़ा अभी कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सो आई थिंक कि हमको थोड़ा सा इस पैरामीटर को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए. जैसे रिसेंटली क्रेडाई पुणे का, एक क्रेडाई इंदौर का हमारा टूर था क्रेडाई पुणे में, जहाँ पे हमने उनके सारे पुणे के प्रोजेक्ट्स देखे, जो टेक्नोलॉजीज़ जो वहाँ यूज़ हो रही है, जैसे एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग, माइवन के नाम से भी जिसको लोग बोलते हैं यहाँ पे, टावर क्रेन्स, वहाँ तो टनल शटरिंग टेक्नोलॉजी भी ले आए हैं. साल भर में 1-1 मिलियन स्क्वायर फीट भी डिलीवर कर रहे हैं वहाँ के डेवलपर्स. एंड ये सिर्फ फास्टर डिलीवरी नहीं हो रही है, दे आर डिलीवरिंग दिस विथ क्वालिटी. So I think we have two big guns here, Sandeep ji from Credai Indore and Vivek Bhaiya from Naredco. I think we should take such initiatives कि सिर्फ we as a developer we shouldn't visit these cities. हमारी जो यहाँ की लेबर्स हैं उनका भी स्किल डेवलपमेंट उसी तरीके से हो कि ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके. आज मैं माइवन ले आऊँ, बट यहाँ पे माइवन के लोग ही नहीं है, लिमिटेड 1 या 2 कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे जो माइवन में काम कर सकते हैं. टावर क्रेन्स के लिए हर कोई अभी यूज टू नहीं हुआ है. तो मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट हमारी विजिट के साथ साथ आई थिंक वी शुड टेक सच इनिशिएटिव्स वेयर अवर लेबर्स, अवर मैनेजर्स, इवन दे कैन विजिट सच बिग सिटीज़ वेयर दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी अडॉप्टेड. तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा. एंड आई वुड से जैसे राज अहमदाबाद से इंदौर आ रहे हैं, आई एम श्योर इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंदौर में काम करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इज बीन डूइंग द सेम वर्क इन अहमदाबाद सिंस मोर देन अ डिकेड नाउ. Vivek, thank you so much. I really love your passion and your answer was also very detailed. Thank you so much. I think ये conversation बहुत अच्छा हुआ है. Now there is one common question जो मैं सबको पूछूंगा and then we can conclude our session. Generally मुझे कई बार पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है अगले 10 साल में क्या क्या बदलेगा. तो मैं बोलता हूँ यार कभी ये भी पूछा करो कि आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल में क्या बिल्कुल नहीं बदलेगा. तो क्या नहीं बदलेगा हिंदुस्तान में? सबको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए सबसे कम दाम में, करेक्ट? तो मेरे को लगता है अगले 10 साल में भी वही रहेगा. सबको बेस्ट लोकेशन चाहिए, सबको बेस्ट डेवलपर चाहिए, और बेसिक्स कभी नहीं बदलते. So those basics will not change, but we will keep on evolving, we will keep on improving. That is what is called innovation. तो मेरा क्वेश्चन सबको ये है कि क्या, मेरा क्वेश्चन वही है जो मुझे भी पूछा जाता है, क्या बदलेगा अगले 10 साल में. मेरा क्वेश्चन ये है आप सबको. राज, मैं आपसे शुरू करता हूँ और आपको इंदौर के बारे में बात करनी है. यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम अहमदाबाद, कि क्या आपको लगता है अगले 10 साल में इंदौर जैसे 2047 तक प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन ऑफ मेकिंग इंडिया अ विकसित भारत,
is being driven by everybody. We want India to be a developed economy by 2047. Am I right? So, क्या अगले 10 साल के अंदर कैन इंदौर, आपके क्वेश्चन से शुरू करूंगा, कैन इट बिकम एज वाइब्रेंट एंड बिग रियल एस्टेट मार्केट एज अहमदाबाद और एनी अदर सिटी? क्या ये एक सेमी मेट्रो या मेट्रो सेमी मेट्रो तो है ही, बनेगा 10 साल में? और अगर ये नहीं बनता तो वो क्या चीज़ है जिसके कारण नहीं बन पाएगा? और अगले 10 साल के बाद अगर हम यही पैनल डिस्कशन कर रहे हों और हम क्या ये तो नहीं बात कर रहे होंगे कि अगले 10 साल में बन जाएगा, अभी तो नहीं बना? मेरा ये क्वेश्चन आप सबको है, आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बैकग्राउंड से, यू नो, इफ यू कैन टेक 1 minute each and talk about it. सो इंदौर में जितना मैं देखा हूँ, सुना हूँ कि एजुकेशन आईटी पे ज़्यादा फोकस्ड है, कि वहाँ के प्लेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं. अहमदाबाद का मैं रिलेट करूँ तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का फोकस काफ़ी ज़्यादा था. वहाँ पे साणंद, चांगोदर के जो जीआईडीसी एरियाज़ है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप हुई एंड गवर्नमेंट सेटअप लॉट ऑफ कॉरिडोर्स फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम देयर. अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे कनेक्टिंग दिल्ली एंड मुंबई विद अहमदाबाद, एंड एक्सप्रेस वे भी कनेक्टिविटी हो गई है. तो काफ़ी जो मेजर हॉट पॉकेट्स डेवलप हुए थे इन द पास्ट वर द रेसिडेंशियल जोन्स एंड द कमर्शियल जोन्स नियर दीज इंडस्ट्रियल पॉकेट्स. उसके बाद अभी गिफ्ट सिटी आया है, अभी धोलेरा का डेवलपमेंट चालू हुआ है. सो लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के इधर ये डेवलप होगा, इधर ये डेवलप होगा. अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ का भी चालू हुआ कि जो 3 एरियाज़ में कॉमनवेल्थ का प्लानिंग है, वहाँ पे ऑलरेडी लैंड प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए आखिरी 1-1.5 साल में. तो a lot of it is pushed is a reaction to government initiatives कि कहाँ पे कुछ डेवलपमेंट आएगा. एंड अ मेजर पार्ट ऑफ दैट हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग फॉर अहमदाबाद. फ्लेक्स स्पेसेस भी अभी चालू है, बैक ऑफिसेस, लेकिन आई थिंक वो इंदौर में ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू अहमदाबाद. सो कितने आईटी प्लेयर्स के लिए क्या हम इंसेंटिव्स लगा सकते हैं टू बिल्ड मोर बैक ऑफिसेस हियर? क्या मैन्युफैक्चरर्स को दे सकते हैं? आई थिंक दैट विल बी अ क्रूशियल player behind the growth after 10 years. श्रीवास्तव जी, मैं आपकी सारी बातें सुनता जा रहा था. आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि सारे रियल एस्टेट के तगड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं. तगड़े हम लोग दिखते हैं. सावन ने वर्की में क्या क्या काम कर लिया, टर्नओवर नहीं दिखता है इसका. आप जितने साल से काम कर रहे हैं JLL में सब जगह, रियल एस्टेट का एक बेसिक ड्रॉबैक क्या है कि हम जो भी टर्नओवर करते हैं सड़क के किनारे छोड़ के आ जाते हैं. तो एवरीवन कैन वर्क आउट माई बैलेंस शीट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स. दूसरे बिजनेस में ऐसा नहीं है. आपने रियल एस्टेट में 25 साल में क्या कमाया, ये आपके अलावा किसी को नहीं पता. रियल एस्टेट में दिखता है कि क्लासिक बिल्डर 38 साल में 70 बिल्डिंग बनाई है, 500 हाउस बनाए हैं, तो भले मैंने 2 लाख में मकान बेचा हो, वो वर्किंग फाइनेंशियल वर्किंग आज के हिसाब से करता है. इसीलिए हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर्स रियल एस्टेट पे इसलिए भी आते हैं. क्यों सारी एक्सपेक्टेशन सरकार रियल एस्टेट से ही करती है. ये फोरम हमारा इस मुद्दे का नहीं है, बट हमारा कहना, जैसे अभी रिसेंट बात हो रही थी EWIG के पॉलिसीज़ की, नई पॉलिसी आ गई. गवर्नमेंट ने 2019 में कोई रूल बनाया, उसका इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन वॉट एवर वी कैन से. अभी रिसेंट एक ऑर्डर निकल गया कि 2019 से लेकर अभी तक जितनी बिल्डिंग बनी है सब में गरीबों के मकान के लिए आपको गाइडलाइन का 5% पैसा जमा करना है. जो बिल्डिंग हमने 19, 20, 22 में बना दी, सरकार भूल गई बेचारी, अधिकारी भूल गए. उन्होंने अब पढ़ लिया कि साहब 19 में रूल आ गया था. सही था या गलत था वो डिबेटेबल इशू है. आज हमसे 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ मांग रहे. ये टर्नओवर का जो तगड़ा दिखना जो आपने यूज़ किया वही वर्ड है. हर एक को लगता है रियल एस्टेट वाला प्लेयर बहुत तगड़ा है. दूसरा, सावंत भाई आपने जो बोला क्वालिटी, हम लोगों ने गुजरात विजिट किया, सूरत विजिट किया, हम क्रेडाई इंदौर की टूर लेके 70 मेंबर लेके हम पूना के टॉप प्रोजेक्ट्स देख के आए. क्वालिटी में वी आर मच अहेड देन मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया. जो हम लैग कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द अप्रूवल्स ऑफ हाई राइज बिल्डिंग. भाई 6 मंजिल बिल्डिंग बनाने के लिए क्रेन कहाँ से क्यों लाएंगे? कॉस्टिंग नहीं बैठेगी ना. आप माइवन शटरिंग की बात करते हैं. सेकेंडली, सबका रोल है, चाहे रियल एस्टेट हैं, चाहे आप इरवा ब्रोकर्स हैं, चाहे पब्लिक है. अभी आप बहुत बढ़िया बोल रहे थे कि हर एक को सस्ता घर चाहिए, किसी को क्वालिटी का घर नहीं चाहिए. नो वन इज वर्किंग कि वो इसका प्रोजेक्ट 10,000 का, इसका 8,000 का, 6,000 का, वाई दिस दैट, उसको सस्ता चाहिए.
आई कैन से विथ माई एक्सपीरियंस में लास्ट 38 ईयर्स मेरे पास ऐसा 10 आउट, अगर मैंने 2000 मकान बनाए हैं तो 10 बायर ऐसे नहीं आए जो मुझसे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और टाइटल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। वो रेफरेंस निकाल के आते हैं, संदीप शाह तो किसका परिचित है, सावंत का परिचित, सावंत से फ़ोन करा के कैसे 500 रुपये डिस्काउंट कर लिया जाए। द सेम इशू विथ हैव द इरवा एंड ऑल ब्रोकर्स। आप लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप लोग अपने कस्टमर को, क्लाइंट्स का, एक्चुअली क्लाइंट्स को बताता कौन है? मीडिया एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग सब करते हैं। एवरेज कंस्ट्रक्शन वाले का पेपर में बिल्डिंग की एलिवेशन वैसी दिखेगा, स्पेसिंग वही दिखेंगे, और टॉप बिल्डर्स का, विवेक चौक का भी वैसे दिखेगा। ये जिम्मेदारी मीडिएटर्स की है, इरवा वालों की, सारे ब्रोकर्स की है। उनको चाहिए, वो खुद ही ले जाके देते हैं, बॉस ये तो 10,000 का, ये 8,000 तो 8,000 ले लो। ब्रोकर का इंटरेस्ट है, सस्ता आदमी जल्दी खरीदेगा, मेरी ब्रोकरेज पक जाएगी। बस आप प्रमोट करो ना अच्छी क्वालिटी को, हम तो बनाई ना अच्छी क्वालिटी। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज ला देती है, हाई रेट जैसे विवेक ने बोला FAR आ जाता है, FAR 3 सुपर करोड़ रुपये है, जहाँ रेजिडेंशियल की आज कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ 3 FAR दिया है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ FAR 1.25 1.5 है। अगर पॉलिसीज़ इम्प्रोवाइज हो जाती हैं जो चल रही हैं, मैंने बार बार ये कहा कि मैं पेस की बात कर रहा हूँ, पॉलिसीज तब आ रही हैं। इंदौर में जितने आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम पहले हम बहुत आगे हैं, पिछले 10-15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम हुआ। अभी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, एलिवेटेड ब्रिज बन रहे हैं, सारे सुपर करोड़ों पे वो बन रहे हैं। जिस दिन ये सारे बन जाएंगे, पेस कम क्यों है? मैंने दिल्ली में देखा, एशियन गेम्स के टाइम पे सारे उनके हाईवे, सारे ब्रिजेस 6 महीने में बन गए, हमारे यहाँ 5 साल में बनते हैं। अगर 3 साल 4 साल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो बन जाता है, जो मास्टर प्लान भूमि विकास के अमेंडमेंट जो करना चाह रहे हैं वो कर देते हैं, तो इंदौर में तो विल पावर है। हमने अपने खुद के दम पे इंदौर का नंबर 1 ला के 7 साल से दिखा रहे हैं लगातार, हम क्यों नहीं आगे जाएंगे? अगर ये सारे सपोर्टिंग रहेंगे, ब्रोकर्स, पब्लिक और गवर्नमेंट, तो हम दिखा देंगे कि इंदौर बैंगलोर से आगे पहुंच जाएगा। आप मान के जाइए। Very nice, thank you. Savan? Quickly, straight on your question. Savan, one more point I wanted to ask you was about GCC, if they are coming here or not. Yeah, so GCCs are coming. They're evaluating Indore. It's on their radar. There 3-4 GCCs have already entered the city now, and a couple of them are evaluating to come here. Coming on the question which you originally asked, कि 10 साल में इंदौर में ऐसा क्या है जो हम मिस कर जाएंगे अगर अभी नहीं करते, तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। हमें इंदौर को पोजीशन करना चाहिए AI, स्टार्टअप, IT हब की तरह एज अ सिटी। अगर हम प्रमोट करते हैं, जो अभी करेंगे, तो अगले 10 साल में रियल स्टेट और डेवलपमेंट शहर का बहुत अच्छा हो जाएगा। इंदौर की GDP इज़ डबलिंग एवरी 5 ईयर्स। 2025 की GDP जो इंदौर की थी 2030 में डबल हो जाएगी। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग, एंड नेक्स्ट 10 years इंदौर हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंदौर। जो सब कुछ चाहिए, सेंट्रल लोकेशन, एम्प्लॉयज़, टैलेंट, सब कुछ है यहाँ पे। थोड़ा सा अब एक रियल मार्केटिंग की ज़रूरत है इंदौर को। एज अ ब्रांड इंदौर अगर हम प्रमोट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, आई थिंक वी हैव ऑल द गुड इंग्रेडिएंट्स फॉर इंदौर। थैंक यू सर। अश्विंदर भाई, मैं तो पॉजिटिव बंदा हूँ और एक ही बात करता हूँ कि जो भी मेरे को और इस ग्रुप को, हमारे को आज मिला है, वो इस शहर से ही मिला है, और शहर में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अगर आप 10 साल की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रियल एस्टेट बिजनेस आज जिस लेवल पे है उससे 25 टाइम्स हो जाए, 20 टाइम्स हो जाए, 30 टाइम्स हो जाए, बिकॉज ये शहर में पोटेंशियल, जैसे अभी संदीप भैया ने बताया कि जो भी ये शहर बना है यहाँ के लोगों से ही बना है। कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस शहर को नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ के रियल एस्टेट बिल्डर्स की बात की जाए तो बहुत छोटे लेवल पे संदीप भैया ने चालू किया था। ऐसे ही हम सब लोग बहुत स्टार्टिंग, मैंने 4 प्लॉट 1-1 हज़ार फीट के 2.5 लाख के खरीदे थे जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई 2001 में, और उस पर 8 मकान बनाए जिसकी एक मकान की कॉस्ट 2,10,000 रुपये मोटा मोटा थी, और वो 2001 से 2005 तक मैंने 125 मकान बनाए, और वहाँ से आज मैं 42 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुका हूँ मेरे ग्रुप के द्वारा। तो ये शहर बहुत पोटेंशियल वाला है, ये शहर सेल्फ ग्रोइंग शहर है, और आज जितने शहर में ब्रिजेस बन रहे हैं, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, जितनी अच्छी यहाँ पे पॉलिसीज़ धीरे धीरे बन रही, ये मान रहा हूँ कि मैच्योरिटी अभी पॉलिसीज़ में आने में थोड़ा समय लग रहा है, बट अगर बाहर की सिटीज़ से कंपेयर करें तो हम लोग
अगले 10 सालों में मुंबई के लेवल पे 100% पहुंचेंगे। और ये बिजनेस हमको इस शेयर को, जैसे मेरा एक ही आंसर रहता है, कोई वैसे कस्टमर आता है और बोलता है यार आप क्या, मैं क्यों लूँ, तो मैं कहता हूँ मेरा 25 साल पहले मतलब एक ही क्वेश्चन आंसर रहता था कि मैं इसी शहर में इसी नाम से इसी बिजनेस को अगले 25 साल 100% करूंगा, इसलिए मैं आज ज़्यादा कमा लूँ ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच ये है कि मैं लॉन्ग लास्टिंग वर्क करूँ इसी बिजनेस को, इसलिए वो कस्टमर ने मेरे को आज इस लेवल पे लेके गए। एक्सीलेंट सर। सर 100% सही बोल रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है शहर में और ग्रो भी कर रहा है शहर और आगे भी ग्रो करेगा। गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा फोकस है, मेट्रोपोलियन बना रहे हैं उज्जैन इंदौर को मिला के, प्लस जो इन्वेस्टमेंट भी बाहर का काफ़ी, जैसे अभी हम लोग उज्जैन रोड पे काम करते थे तो उज्जैन रोड पे जो मेजर जो मेन रोड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब या तो साउथ वालों ने, बॉम्बे वालों ने या ग्वालियर, इस तरह का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है पूरा का पूरा। तो बाहर से काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और अच्छा ग्रोथ है शहर में। बस एक डिस्पोजल इनकम अभी शहर की थोड़ी कम है, तो वो आईटी या जैसे सावन भाई बोल रहे हैं एआई और इस तरह से प्रोजेक्ट करके, क्योंकि शहर का भी कोई बेसिक बिजनेस नहीं है। जैसे आप अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद का मेटल टेक्सटाइल बिजनेस है, बड़ौदा का केमिकल बिजनेस है, इस तरह का अभी हमारे शहर का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है स्ट्रॉन्ग की एक उसमें काफ़ी लोग, लाखों लोग लगे हुए हैं। वो भी धीरे धीरे डेवलप होगा, शहर का ग्रोथ अच्छा है। एक्सीलेंट सर। सी मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ फॉर द इंदौर मार्केट। जैसे लीडरशिप भी इंदौर की काफ़ी अच्छी है। इंदौर शुरू से एक ट्रेडिंग हब रहा है, जैसे एमटी क्लॉथ मार्केट। माय फादर ही स्टार्टेड एज अ क्लॉथ ट्रेडर, उसके बाद रियल एस्टेट में घुसे थे 1982 से पहले। तो ट्रेडिंग हब रहा है, जैसे एमटी क्लॉथ मार्केट मैंने कहा, दूसरा सियागंज हो गया। तो ये भी एक इकोनॉमिक ड्रिवन करती है इंदौर की कहीं ना कहीं। आईटी जो अभी है, आई एम श्योर नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये और मैनीफोल्ड टाइम्स होगा। जैसे अभी सावन ने कहा आज नहीं है ग्रेड ए स्पेसेस, बट जिस तरीके से अवेयरनेस आ रही है, आई एम श्योर नेक्स्ट 10 ईयर्स में सावन विल सी लॉट ऑफ ग्रेड ए स्पेसेस also about to come. We are also coming up with a project on Super Corridor and उसको भी उसी तरीके से प्लान कर रहे हैं। एंड जो अब इंदौर जो हो रहा है ना, अभी इट्स अ ट्रांजिशन फेज गोइंग ऑन। अभी जैसे अपन इंदौर कहते हैं कि इंदौर की हर सड़क खुदी हुई है, तो ये खुदी इसलिए क्योंकि देयर इज अ डेवलपमेंट गोइंग ऑन। सो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, जैसे आज बाईपास पे 3 लेयर फ्लाईओवर बन रहा है, तो एंड उसके साथ साथ सर्विस रोड का एक्सपांशन चालू होगा। एबी रोड पे जैसे बैरिकेटिंग अपन देख रहे हैं क्योंकि यहाँ एक एलिवेटेड कॉरिडोर आ रहा है। एमजी रोड पे मेट्रो ट्रेन जो है रिंग रोड से अब टर्न होकर एमजी रोड तक आएगी। तो बेसिकली दिस इज अ ट्रांजिशन फेज गोइंग ऑन। सो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में जब ये सारा ट्रांजिशन कंप्लीट होके जो अब डेवलपमेंट फेज आएगा, तो आई एम श्योर इंदौर की ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जैसे हम कंपेयर करते हैं विद सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई एंड ऑल, बस यहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द आदमी की लाइफ तो सिर्फ गाड़ी में ट्रैफिक जाम में चली जाती है। तो जब ये सारे डेवलपमेंट रोड्स और इनके कंप्लीट हो जाएंगे, आई थिंक विल सी अ डिफरेंट एंड अ न्यू इंदौर ऑल टुगेदर। एंड मैं समझता हूँ यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया में ही नहीं, बेस्ट हॉटस्पॉट हो सकता है, इंडिया की टॉप लिवेबल सिटीज में इंदौर का नाम आएगा। Outstanding. I think this is one of the finest panel discussions I have had, and I also personally feel वैसे भी you can't be in real estate if you are not optimistic. So I am very happy that everybody is optimistic. We are by default optimistic people, and today Indian real estate is at $500 million. It is going to be $1 trillion by 2030, and by 2047. Today's Indian economy on purchasing power parity is third in the world, but by 2047 it is expected that the Indian real estate market will be $5.5 trillion. Means 11 times in the next 20 years the Indian real estate market will grow 11 times. And if that is the case, tier 2 cities like Indore, Lucknow, Jaipur, Mysore, Nagpur, Thiruvananthapuram are going to grow by 100 times. If this data has to be supported, what we need is ease of doing business, what we need is pace of doing business, we need employment, we need better spaces, we need more capital, but above all, we need the passion and leadership which is there, especially in the city of Indore. So, a big round of applause to this wonderful panel, and I sign it off in a very, very positive note. Thank you. Thank you so much. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. Can you all clap it up a little louder for them, please? मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा इधर सामने आके खड़े हो जाने के लिए, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस तृप्ति केरिया, पब्लिशर एंड बिजनेस हेड ऑफ रियलिटी प्लस, टू प्लीज काइंडली कम अप ऑन स्टेज और सबको टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड विवेक जी, आपका वो लास्ट वाला पॉइंट ट्रैफिक वाला
आधा जिंदगी निकल जाता है, पर्सनली बहुत दुख हुआ, मुंबई से हूं मैं तो मैं समझ सकता हूं मैं सर गुड बैकअप ऑप्शन. थैंक यू. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए भी प्लीज काइंडली कम फॉरवर्ड. लेट द लेडी बी इन द मिडल मे बी. वी ऑल कैन बी लाइक नाइस जेंटलमैन एंड लेट हर बी ओवर देयर इन द मिडल. एंड आप लोग थोड़ा अगर और ताली बजाओगे, आई एम श्योर वो जो तस्वीरें हैं वो और ज़्यादा बेहतरीन निखर के आएंगे. सो बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल माई इनक्रेडिबल पैनलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इतना बेहतरीन कॉन्वर्सेशन करने के लिए हम सबके सामने. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.